of evaluation? Who will recall the steps of evaluation? Any one of you, please try. May I, ma'am? Yes, yes, Ma'am, steps of educational evaluation, na? yes. Okay, the first step is select. We have to select the educational technique for the educational objective. Okay, Second one, the use of the technique to determine the outcomes. And the third one is the measure. Fourth one is comparing. It means compare learning outcomes with educational objective to determine the extent of achievement of objective. And then we have to judge. Judge by teacher and uh, give remark as on further for the satisfactory. Hello, ma'am. We can't hear you. Ma'am, you are not audible. नेटवर्क इश्यूज हैं. हेलो. Yes. Hello. मैम का वॉइस आ रहा है क्या? Can you listen me? Hello. Ma'am, Yes, now ma'am. we can listen you. okay. There might be some issue. I was also wondering why voice is not coming. Hello. Yes, ma'am. Yes, I yes, ma'am. okay. I'm asking what is the third step of evaluation? मेजर मैम. Measure the outcomes. Okay. Measure the outcomes. Which outcomes we are talking of? Learning outcome. लर्निंग ऑब्जेक्टिव. Learning objectives or learning outcomes? What you are measuring? Learning outcomes. Learning outcomes. Yes, we are measuring the learning outcomes. Now, what do you mean by the learning outcomes? आप learning outcomes से क्या समझते हैं? Ma'am, जो desirable To what changes extent आए learning हैं objectives child have में. been achieved? एक एक करके. What is learning outcome? Now, specify any one of you. Ma'am, the desirable changes that have taken place in child Okay. according to his or her extent of learning. Okay, it is desirable changes or they are the specific changes which are after the instruction we find. Can we say this? Yes, Learning. ma'am. Yes, Yes, ma'am. learning outcomes are the actual changes, है ना? तो learning outcomes क्या होते हैं आपके? जो actual changes होते हैं और वो कब होते हैं? After the instructions or after different learning experiences. Experiences. So we can define outcomes of various learning experiences provided at the school are called learning outcomes. ठीक है, जो भी outcomes आपको कुछ instructions के बाद मिलते हैं and those outcomes are because of some changes in the student. Fine. So we call them as learning outcomes. So learning outcomes are the actual changes which are prevailing in the child. Is it okay? So we can restate it as the learning outcomes are specification of what students does after the instruction. Can we say this? The learning outcomes Yes, are ma'am. the
specifications of what the student does after the instruction. Instruction means there might be some dialogues among the student and teacher. There might be some task given by the teacher. There might be some other learning experiences by means of demonstration or by means of some experimentation. So जो भी learning experience आपने provide किया है student को, उसके basis पर जो भी changes बच्चे में आएंगे, so those specific changes which are found in the child, they are termed as learning outcomes of the student. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let us go. Now learning for the learning outcomes, how a teacher is measuring those learning outcomes. एक teacher कैसे measure करेगा उन learning outcomes को? Suppose you are taking a class of 70 students. आप 70 students का class ले रहे हैं and you have taught a process of say osmosis. Osmosis is a process, है ना? Physics में आपने नाम सुना होगा osmosis. आपने osmosis process के बारे में पढ़ाया या आपने GDP का concept बच्चों को बताया. What is the meaning of GDP? है ना? Gross domestic product. है ना? Yes. आपने इस concept के बारे में बच्चों को कुछ instructions दिए. You have taken them to आपने उसको explain किया. Now after explaining, how you will measure those learning experiences? एक बच्चे को आप कैसे measure करेंगे learning experience? By taking a written test. By questioning. asking some questions. Okay. But when you are asking certain question or when you are asking to write some answer, it means you are giving some task. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? You are asking the student to do some performance. The performance may be in terms of demonstration. Performance may be in terms of writing the answer. The performance may be in terms of giving oral or by explaining the concept. It means you are using some technique, but you are basically giving something to perform. है ना? कुछ एक्शन करने के लिए, कुछ जब तक बच्चा परफॉर्म करके नहीं बताएगा, you may not be in a situation to know that whether they have really understood the concept or not. है ना? बच्चे के अंदर लर्निंग हुआ है कि नहीं, उसके लिए आपको उसको कुछ टास्क असाइन करना पड़ेगा, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क असाइन करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लर्निंग हुआ है या नहीं. फाइन. नाउ दिस इज व्हाट आई हैव रिटन इन दिस स्लाइड. To determine the learning outcomes, teachers should be able to observe the actual changes. Can we say that? Ma'am, please change the slide. I have changed. It will take few seconds to come. I think it will come now. Yes. Yes, ma'am. है ना? Now, it takes few seconds to scroll the slide. बेटा? To determine the learning outcomes को determine करने के लिए टीचर को क्या चाहिए? टीचर शुड बी इन ए पोजीशन टू ऑब्जर्व दोज एक्चुअल चेंजेस. Until you write the answer, teacher may not know. Until you speak or you give oral answer, teacher may not know about it. Until you demonstrate some experiment, teacher may not know about this. Fine. टीचर को नहीं पता लगेगा कि एक्चुअली आपके अंदर लर्निंग हुआ है कि नहीं. सो एक्चुअल चेंजेस को जब तक टीचर ऑब्जर्व ना करे, the changes may be in terms of knowledge, the changes may be in terms of understanding, the changes may be in terms of skills. So changes interest में भी हो सकता है, adjustment में भी हो सकता है, knowledge में भी हो सकता है. लेकिन जब तक टीचर उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, टीचर को पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअल चेंजेस हुए भी हैं या नहीं, या चेंजेस बच्चे के अंदर हुए हैं या नहीं. So this is one thing. Fine. So the teacher इसीलिए क्या करता है? Writing test, written test लेता है, oral question करता है, कुछ task perform करने को बोलता है कि ये आप करके दिखाइए ये, and then upon the जो भी output होता है, that is the learning outcomes को वो measure करने की कोशिश करता है. Fine. Is it okay? Is this point clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is I have written the same thing but in a more systematic manner. The actual changes are specified
in terms of students performance or action after the instruction. ठीक है, this is what I have explained just now. जो actual changes होंगे बच्चे के अंदर, they are specified in terms of students performance or action, जिसको कि आप बोल रहे हो writing a test or giving some oral narration or demonstrating something. So this is by performance you are expecting. Fine. So learning outcomes are specified in terms of changes in the student's behavior. Actually perform कर रहा है, इसका मतलब student के behavior में change है. Can you say that? यहाँ पे changing in the behavior means पहले वो नहीं perform कर पाता था, लेकिन after your class, after your instructions, the student is able to perform. So change that performing means, हाँ, performing means change in the behavior, है ना. आपने क्लास ली, आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी बच्चे को, उसके बाद ही वो चेंजेस देखने को मिले कि स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज है. The change may be in knowledge, the change may be in understanding, it may be in skill, it may be in interest, it may be in adjustment. So change अलग अलग वे से आप उसको देख सकते हैं. Is this clear point? Is this point clear to my Yes, students? Okay. Yes, Now ma'am. next is, okay, next is, Yes, ma'am. for evaluation purpose, learning outcomes have to be specified in terms of behavioral changes. This is very important to understand. जो भी learning outcomes हैं, अगर हम उसको evaluate करना चाहते हैं, so until and unless they are in behavioral terms means जो आप उसको performance के तरीके से करके बता पाएं. जब तक देखो, अगर हम बोलते हैं ना, कभी कभी स्टूडेंट को हम बोलते हैं कि आर यू एबल टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, क्या आप स्विम करके दिखा सकते हैं? बच्चा बोलता है यस, ठीक है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज अ स्किल बेस्ड एक्टिविटी. तो उसको जब तक वो स्विम करके नहीं दिखाएगा, वी कैन नॉट say whether the child is or the student is able to really swim or not. Fine. If a child is able to do some experiment, अगर बच्चा एक्सपेरिमेंट की बात हम करें, तो जब तक वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ठीक से नहीं बता पाएगा, that we cannot say the child is able to really gain the knowledge about performance of that particular experiment. So evaluation के लिए जो भी टास्क होगा, आप जो भी लर्निंग आउटकम्स है, उसको आप किस वे से असेस कर सकते हैं? जब एक स्टूडेंट उसको परफॉर्म करके बताएगा, या आप बोलेंगे उसके बिहेवियर में चेंज दिखेगा. लेकिन बिहेवियर में चेंज कैसे दिखेगा? जब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा, उसके बिहेवियर में चेंज कैसे मिलेगा आपको? Is this okay? So change specified in terms of behavioral change means कि बच्चा अब उसको परफॉर्म करके बता पाएगा, उस एक्शन को करके दिखा पाएगा. That is the meaning of here behavioral changes. Can you say that? Is this point clear? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now Yes. this point is clear to you कि after instruction only changes are taking place in a child, and those actual changes which are prevailing in a child after the instructions, हम उनको learning outcomes बोलते हैं, है ना. जो आपने different learning experiences के बाद उसके अंदर स्टूडेंट में जो चेंज मिले, और वो चेंजेस को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? when the changes are observable. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात. जब तक आपके चेंजेस ऑब्जर्वेबल नहीं है, तब तक टीचर फाइंड नहीं कर पाएगा कि रियली द स्टूडेंट हैज लर्नड और नॉट. और इन ऑर्डर टू मेजर दोज लर्निंग आउटकम्स, बच्चे को क्या करना पड़ेगा? वो चीजें परफॉर्म करके दिखानी पड़ेंगी, आइदर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और इन टर्म्स ऑफ सम एक्शन. इट मे बी रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, जो हमने बात की अभी. नाउ let me come down to again the evaluation process. After the third step, आपने learning outcomes को तो measure किया, but what you go for next? आप next step क्या करते हैं? What is your fourth step? Compare. आप क्या करते हैं? Compare करते हैं, है ना. जो learning outcome आपको मिले, उसको आप किससे compare करते हैं? Learning objectives. Educational objectives. Educational objectives, है ना. Educational, yes, very rightly said that we compare the learning outcomes with the educational objectives. And why do we compare?
टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ लर्निंग, है ना। हम एक्सटेंट ऑफ लर्निंग जानने के लिए हम लर्निंग आउटकम्स को एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंपेयर करते हैं। बट हाउ डू वी डिफाइन, हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे, जब हमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव तो चाहिए होंगे ना, वी मस्ट हैव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स टू कंपेयर द लर्निंग आउटकम्स। वी मस्ट हैव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स टू कंपेयर। आपके पास लर्निंग आउटकम्स तो आ गए, लेकिन आपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्रेम किए? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होंगे तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल दूं, आप एक दुकान पर गए, यू वेंट टू वन शॉप एंड यू हैव आस्क्ड कि मुझे 4 मीटर ब्लैक कलर का क्लॉथ चाहिए, मुझे 4 मीटर का कपड़ा, ब्लैक कलर का कपड़ा मुझको चाहिए है। नाउ दुकान वाले ने आपको 4 मीटर कपड़ा निकाल के दिया। नाउ यू हैव टू वेरीफाई कि रियली ये 4 मीटर है कि नहीं। तो आप क्या करते हैं? व्हाट यू डू? You are comparing a standard scale with that cloth. यही करते हैं? Yes? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, आप एक स्टैंडर्ड जो एक मीटर का जो उसके पास मीटर स्केल होता है, 1 मीटर स्केल होता है, वो आप मेजर उसको आप 4 टाइम्स फोल्ड करके देखेंगे विद दैट पीस ऑफ क्लॉथ कि अगर वो कंप्लीट है, इट मीन्स 4 मीटर का क्लॉथ आपको मिल गया है ना। लेकिन अगर वो छोटा है, इट मीन्स उसने कपड़ा कम दिया है ना। या अगर वो कपड़ा ज्यादा है 4 मीटर से उस स्टैंडर्ड स्केल से, तो आप बोलोगे कि कपड़ा ज्यादा दे दिया है। इट मीन्स आपके पास कुछ स्टैंडर्ड चीज होनी चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर आपके लर्निंग आउटकम्स जो है उसको आप किससे कंपेयर करते हैं? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से। लेकिन एजुकेशन, यस, लेकिन आपके लर्निंग आउटकम्स किस टर्म में है? दे आर इन बिहेवियरल टर्म्स। आपके लर्निंग आउटकम्स किस टर्म में है? दे आर, बिकॉज जब तक टीचर उसको ऑब्जर्व, हाँ, बिहेवियरल टर्म्स में है। बिहेवियरल टर्म्स मीन्स परफॉर्मेंस बेस्ड है ना। जब तक स्टूडेंट परफॉर्म करके नहीं बताएगा तब तक लर्निंग आउटकम्स टीचर मेजर नहीं कर पाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Ma'am, you are muted. Ma'am, you are not audible. Ma'am. हेलो, हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. I'm sorry because of some reason it gets again and again muted. Okay, so I was talking that कि हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं दे आर इन बिहेवियरल टर्म्स, है ना। आप उसको परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। द लर्निंग आउटकम्स कैन बी मेजर्ड ओनली whenever only they are in observation form, है ना। जब तक आपके लर्निंग आउटकम्स ऑब्जर्वेबल नहीं होंगे, बिहेवियरल टर्म्स में नहीं होंगे, तो आप लर्निंग आउटकम्स को मेजर नहीं कर पाएंगे। बट आपको फाइनली करना क्या है? यू हैव टू कंपेयर द लर्निंग आउटकम्स विद द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही कंपेयर करना है। तो आपको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी किस टर्म में बनाने हैं? बिहेवियरल टर्म्स में ही बनाने हैं, तभी आप उसको कंपेयर कर पाएंगे। इज दिस क्लियर पॉइंट? Yes, ma'am. यस, Yes, बिकॉज ma'am. आपके लर्निंग आउटकम्स ऑब्जर्वेबल होने चाहिए। आपके लर्निंग आउटकम्स किस टाइप के होने चाहिए? दे मस्ट बी Performance. परफॉर्मेंस बेस्ड। तभी, हाँ, तभी टीचर को पता लगेगा कि रियली जो चेंज वो एक्सपेक्ट कर रही है वो रियली हुआ है कि नहीं। सो एंड व्हेन वी वांट टू कंपेयर दैट learning outcomes with the educational objectives, it is necessary that educational objectives should be framed in behavioral terms only. तभी आप उसको ठीक से कंपेयर कर पाएंगे। So next is, let us come down to the major characteristics of educational objectives. आपके जो educational objectives हैं
उसको आप किस तरीके से सही तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्पेसिफाइड इन डेफिनाइट एंड क्लियर टर्म्स। डेफिनाइट एंड क्लियर टर्म्स मीन्स जैसे आपने पहला एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो स्टेट किया है उसका जो मीनिंग है, द मीनिंग शुड बी सेम फॉर ईच एंड एवरी रीडर। उस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को जो भी पढ़ेगा उससे एक ही मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, कई बार आप क्वेश्चन देखिए, आपने एग्जाम में कई बार ये चीज फेस की होगी कि व्हेन यू रीड ए क्वेश्चन यू फाइंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, यस, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि अगर टीचर क्या पूछ रहा है वो ही हमको क्लियर नहीं होता है, व्हाट इज टीचर इज एक्सपेक्टिंग टू राइट, है ना? क्या आपने ये चीज फेस की है? Yes, yes, ma'am. हाँ, सो Yes, ma'am. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियरली डेफिनाइट होने चाहिए। क्लियर मीन्स ड्यूअल मीनिंग या एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को समझने में। एंड डेफिनाइट मीन्स इट शुड कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल द रीडर्स, चाहे बच्चे हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो, ट्यूटर हो, कोई भी उस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अगर पढ़ता है तो उससे एक ही मीनिंग कन्वे होना चाहिए। सेकेंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक इज educational objectives should be stated in terms of behavioral changes। ये मैंने पॉइंट आपको वैसे क्लियर किया है बट आई एम रीडिंग इट। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? बिहेवियरल टर्म्स में होने चाहिए, बिकॉज क्योंकि आप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अगर बिहेवियरल टर्म्स में नहीं होंगे तो आपके लर्निंग आउटकम्स आप जब कंपेयर करना चाहेंगे तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? Is this point clear? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Third, I am going to give you many more examples with this. Don't worry. Fine. The third point is educational objectives should specify the expected level of learning or performance. कहने का मतलब ये है आपका जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होगा उसका लेवल that objective should specify the expected level of learning। जैसे आप देखिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पढ़ा है, आई थिंक स्कूल में आपने पढ़ा होगा इन 10th स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना? बट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वास्ट डिसिप्लिन। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जब वो टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है तो किस लेवल तक का आपको उस पे कॉन्सेप्ट समझाना है। या एल्जेब्रा आपने पढ़ा होगा, बेसिक एल्जेब्रा या ज्योमेट्री सब्जेक्ट। सो मैथमेटिकल ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव टू टीच। हेलो Yes, हेलो ma'am. स्टूडेंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ाते हो तो उसमें किस लेवल तक आपको प्रिसीजन चाहिए या किस लेवल तक आप बच्चे को लर्निंग होना चाहिए, तो वो लेवल भी स्पेसिफाई करना जरूरी है। फाइन। एंड द लास्ट पॉइंट इज डोंट यूज वर्ड सच एज नो और अंडरस्टैंड इन फ्रेमिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नो और अंडरस्टैंड जैसे शब्दों का प्रयोग आप ना करें जब आप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हम अभी बात कर रहे हैं, दीज आर द स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इज दिस क्लियर? अभी जो हम बात करेंगे ये हमारे स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की हम बात कर रहे हैं। इफ यू सी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। वन इज जनरल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और एक होता है स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो जनरल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दे आर लॉन्ग टर्म एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वो एक क्लास में कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, दे मे टेक इवन द फुल सेमेस्टर, they may take even a couple of years also, fine, they may take couple of classes also, but यहाँ पर जो हम अभी बात कर रहे हैं they are specific educational objective या जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इज दिस क्लियर? सो ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दे मस्ट बी अचीव्ड विद इन अ क्लास। एक क्लास के दौरान ही वो अचीव किए जाते हैं। इज दिस क्लियर?
Yes, ma'am. Okay, Yes, now ma'am. I am going to take you with certain examples so that you can understand what I want to convey. Fine. See, uh, okay. Can you see this slide? Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Thank you. Now, my first educational objective is, suppose in a class fourth, I want to teach the addition of 2-digit numbers. मैंने स्टैंडर्ड 4 में 2-digit numbers को ऐड करना सिखाया, ठीक है? Now, I have stated students will be able to, students क्या कर पाएंगे? They will be able to add 2-digit numbers without error. दिस इज माई एक्सपेक्टेड लेवल कि क्लास स्टैंडर्ड 4 का जो बच्चा है, जब हम उनको 2-digit नंबर्स को ऐड करना सिखा रहे हैं तो वो उसको उसमें गलती ना करे. सो दिस इज माई एक्सपेक्टेड लेवल. कुड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Fine. Okay, let me now, in this particular, add is very important. Add is a performance based task. Did you get my point? कि स्टूडेंट अगर ऐड करके दिखा पाते हैं देन इट इज ओके. अगर वो ऐड करके नहीं दिखा पा रहे हैं, इट मींस दे आर नॉट लर्निंग, है ना. आपने क्लास में एडिशन सिखाया है 2-digit नंबर्स का, और अगर स्टूडेंट्स ऐड करके दिखा पाते हैं, इट मींस इट इज एडिंग इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क. सो टीचर उसको ऑब्जर्व कर सकता है. एंड इट इज वेरी क्लियर कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ रही हूँ, एडिंग 2-digit नंबर विदाउट एरर, आई थिंक दिस सेंटेंस इज और दिस स्टेटमेंट इज गिविंग सेम मीनिंग टू ऑल द रीडर्स. सभी रीडर्स को एक ही मीनिंग कन्वे हो रहा है. इसमें क्या इस स्टेटमेंट में कोई दुविधा या कोई एम्बिग्यूटी है? No, ma'am. हेलो. Oh, ma'am. हाँ, fine. Next is students will be able to explain the process of photosynthesis with diagram. Now this is very clear कि what teacher is expecting after the class or after the instructions कि students जो है वो photosynthesis process को explain कर पाए with diagram is the expectation. Is this clear? So explain is another परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क. स्टूडेंट एक्सप्लेन कर पा रहा है देन इट इज ओके. अगर स्टूडेंट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इट मींस स्टूडेंट हैज नॉट अटेन्ड द लेवल. इज आई एम क्लियर विद दिस टर्म? दिस इज सेकंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. थर्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज students will be able to draw circle for a given radius using geometrical tools. See, this is very important because we are going to give you assignment based on this. इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनिए, और अगर कहीं पे डाउट लगता है तो इंटरैक्ट भी करना, ठीक है बेटा? यू मे आस्क, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ड्रॉ सर्कल फॉर ए गिवन रेडियस यूजिंग ज्योमेट्रिकल टूल्स. स्टूडेंट, अब ये बच्चा, सी आपने क्लास में सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, बाय गिविंग सम मेजरमेंट ऑफ रेडियस और द डायमीटर, आप बच्चे को सिखा रहे हो, लेकिन क्या बच्चा उसको रियली परफॉर्म कर पा रहा है? सपोज यू हैव आस्क्ड टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर. आपने 10 सेंटीमीटर का रेडियस दिया है और आपने बच्चे को बोला कि इसको ड्रॉ करके दिखाइए. अगर बच्चा ड्रॉ कर पा रहा है यूजिंग देयर, otherwise it is the student has not understood. स्टूडेंट को नहीं समझ में आया कि ड्रॉ कैसे करना है. So, ये जो terms हैं add, explain, draw, there is one more educational objective I have framed. Students will be able to write the summary of story in 15 sentences. See, एक story class में teacher ने narrate की है, class में जो आपका chapter होता है say in English, उस story का summary लिखना है. But summary can be written in 2 line also. Summary can be written in 2 pages also. Yes. So एक chapter जो है, say the chapter may be of 4 pages. उस 4 pages के chapter को आप 2 pages में भी आप summarize कर सकते हैं और 2 sentences में भी summarize कर सकते हैं. So what is the expectation level?
that summary should be written in 15 sentences. So this is the expectation level of the teacher. Now I hope with this terms, now ये जो terms मैंने use किए यहाँ पर या words, there could be many more, like add मैंने लिखा है, explain लिखा है, draw लिखा है, write. All these are known as action verbs. इनको हम क्या बोलते हैं? Action 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 verb. हाँ, इनको हम action verbs कह के बुलाते हैं. Why they are action verbs? Verb मतलब क्या होता है? क्रिया. Verb मतलब क्रिया, है ना? Action Yes. verb means ऐसे words जो कि particular action exhibit करते हैं, ये action show करते हैं. Adding is one action, explaining is another action, drawing is another action, writing is another action. Could you understand? There are a list of such actions. अभी मैंने यहाँ पे 4 ही लिखे हैं. Like you have stated, student will be able to define force. So defining is also another action verb. Student will be able to list the examples of student will be able to list the examples of different fruits. ठीक है, तो बच्चे क्या है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इकट्ठे करेंगे जो फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स है. फाइन. सो माय कंसिडरेशन हियर इज, जो परफॉर्मेंस बेस्ड टर्म्स हैं या जो वर्ब्स हैं उनको हम एक्शन वर्ब्स के नाम से जानते हैं. सो वी हैव टू यूज एक्शन वर्ब्स टू write the educational objectives. Then only your educational objective will be in behavioral terms. तभी आपका जो educational objective होगा वो behavioral terms में होगा. Is this clear? Is this discussion is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next thing is, Ma'am, yes. from the previous slide, will you explain the last line? That is, don't use words such as know हाँ. or understand in Yes. framing of I am, POs. yes. I am coming to the same concept. अभी मैं उसी पे आ रही हूँ बेटा. See, the next slide will just it will show to you. It will take few seconds to get in. मैंने यहाँ से चेंज किया है, but it will take few seconds बेटा. 1-2 सेकंड में आ जाएगा आई थिंक. Okay, meanwhile let me describe about this and आपको बीच में स्लाइड भी दिखेगा. Suppose I have written the first educational objective as, आपने क्लास में क्लास 9th के बच्चों को आपने फोर्स कॉन्सेप्ट समझाया है ना? आपने फोर्स के बारे में बताया, व्हाट इज फोर्स एक्चुअली एक्सप्लेन किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बताया है. और आपने पहला ही एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव लिखा है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स. ओके, सेकंड, ठीक है, पहले एक ही की बात करते हैं. नाउ हाउ विल यू कम टू नो दैट student has really understood the concept of force or not? एक टीचर को कैसे पता लगेगा कि जो स्टूडेंट है उन्होंने सच में उनको समझ में आ गया है कि फोर्स का मीनिंग क्या होता है? हाउ विल टीचर विल नो अबाउट दिस? टीचर कैसे इवैल्यूएट करेगा? By telling the student ask- to explain the concept. हाँ, Yes. आपने फाइनली क्वेश्चन ही Taking पूछा ना. test. Yes, ma'am. हाँ, आप yes, आपने या तो आप टेस्ट लोगे या आप उनसे ओरल क्वेश्चन करोगे. सो इट इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, है ना? ये परफॉर्मेंस हुआ बच्चे का. सो इन ऑर्डर टू राइटिंग द टर्म अंडरस्टैंड, यू शुड राइट स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स. तो आप ठीक है, अगर बच्चा एक्सप्लेन कर पा रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स देन इट इज ओके. लेकिन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स अगर आपने लिखा है तो यू कैन नॉट सी, आप उसके माइंड के अंदर जाके नहीं देख सकते हो ना कि बच्चे ने रियली उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया या किस लेवल तक उसको समझ में आया. वी कैन नॉट गो इनसाइड द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, है ना, until and unless he is performing something. जब तक बच्चा कुछ परफॉर्म करके नहीं बताता है, until and unless teacher is able to observe the
changes in the behavior of the child, teacher will not be in a position to know that student has learned the concept of force. So understand word cannot be treated as an action verb. आप understand को action verb की तरीके से use नहीं कर सकते हो. Is this clear? Is I am clear about this point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. See, जैसे Yes, आप ma'am. बोलते हो, हाँ, understand, देखो understand, आपने पूछा, आपने बच्चे को पूछा, have you understood concept of force? बच्चे ने बोल दिया हाँ. क्या आप उसका लेवल ऑफ अटेनमेंट जांच पाए? नहीं, है ना? उस No. नहीं। हाँ, आपको पता ही नहीं लगेगा कि उसको आया भी कि नहीं आया. वो आंसर हाँ या ना में दे देगा. Did you get my point? But you cannot measure the level of achievement of the child. ठीक है? So understand word को इसीलिए हम use नहीं करते हैं in while framing the educational objectives, because it is not a performance based. वो performance based word नहीं है. Fine. Similarly, second example, suppose in say 5th standard आपने बच्चों को multiplication सिखाया है, 2-digit multiplication. So आपने लिखा है students will be able to know about multiplication of 2-digit numbers. कि students 2 digit के number को multiply कर सकें. ठीक है? अब आपने क्वेश्चन भी फिर आप ऐसे ही पूछोगे ना स्टूडेंट को, डू यू नो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2-digit नंबर? तो स्टूडेंट क्या बोलेगा वापस से? यस और नो. बट आपको अगेन यू विल बी स्ट्रक, टीचर विल स्ट्रक कि उसका इवैल्यूएशन कैसे करेगा. डिड यू गेट माय पॉइंट? अगेन टीचर कैन नॉट गो इनसाइड द माइंड ऑफ द चाइल्ड कि उसको मल्टीप्लीकेशन रियल में आया कि नहीं आया. सो इट इज बेटर टू frame the educational objectives in such a way so that you can observe the behavioral change in the child. आप बच्चे के behavior में change में आप उसको measure कर सके. Is I am clear? So teacher may ask, solve the 2-digit multiplications, है ना? So after completion of the class, student will be able to solve the 2-digit multiplication figures. ऐसा बोल सकते हैं कि 2 digit के multiplications को वो solve कर पाए. तो solving is a appropriate or to do the multiplication. 2 digit के numbers को student अगर multiply करके दिखा पाते हैं, then teacher will be able to understand कि हाँ student को multiplication 2 digit का आ गया है. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Similarly, I have given one more example. Students will be able to understand the reasons of Second World War. Second World War के क्या reasons थे? क्लास में टीचर ने, हिस्ट्री के टीचर ने उसके बारे में बताया, पढ़ाया. और अगर आपका क्वेश्चन ये होगा, did you understand the reasons of Second World War? तो स्टूडेंट का लेवल ऑफ अटेनमेंट आपको पता लगेगा, लेवल ऑफ अचीवमेंट नहीं. यू कैन नॉट कम टू नो विद दिस काइंड ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना? सो यू हैव टू आस्क, लिस्ट एटलीस्ट 3 मेजर रीजंस फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना? 3 मेजर रीजंस बताइए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए थे. नाउ स्टूडेंट्स आर कंपेल्ड टू आंसर कि वो 3 मेजर रीजंस कौन से थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए बाध्य थे या रिस्पॉन्सिबल थे. फाइन. सो स्टूडेंट विल बी एबल टू, आपको कैसे लिखना है? यू हैव टू यूज द एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ब्स. और एक्शन वर्ब्स कैसी होनी चाहिए? सो दैट दे मस्ट बी ऑब्जर्वेबल. एक्शन वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि आप उसको ऑब्जर्व कर सको, है ना? ऑब्जर्व करोगे तभी आप मेजर करोगे. इज इट ओके? Is this point clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is a reason why I have written understand, know in red letters. मैंने red letters में इसीलिए उसको bold किया ताकि आप उसको use ना करें. So इसलिए caption भी यही दिया, don't frame educational objectives like this. Fine? तो ये याद रहेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको understand and know use करते हैं. Now see,
ये जो टर्म्स हैं हम स्पेसिफिक, मैंने वापस से रिपीट कर रही हूँ, जब हम स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसमें हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जर्नल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स General. जब हम हाँ, उस टाइम पर हम नो या अंडरस्टैंड भी यूज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? अभी जर्नल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया, बट आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल। जर्नल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे हो सकते हैं? जैसे स्टूडेंट्स विल डेवलप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये एक जनरल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आप क्लास में एलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बढ़ेगा। हेलो, Yes, हाँ, ma'am. हाँ, आप मैथमेटिक्स के क्लासेस ले रहे हैं, आप मैथमेटिक्स के क्लासेस ले रहे हैं, तो ड्यूरिंग द टीचिंग या स्टूडेंट्स विल डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, दिस इज ऑल्सो जनरल ऑब्जेक्टिव। या स्टूडेंट्स विल नो मोर अबाउट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, आप अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप नो या अंडरस्टैंड वर्ड यूज कर सकते हैं। वो किसमें? जब आप जनरल ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं। ठीक है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में नो या अंडरस्टैंड वर्ड हो सकता है, लेकिन जब आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्टिव्स विच आर और विच शुड बी अटेन्ड बाय द टीचर ड्यूरिंग ए क्लास। एक क्लास के दौरान जब एक टीचर उन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है, उनको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। Is this discussion is clear to my students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. For every class there are specific objectives. ठीक है, हर एक क्लास के अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट फॉर सीरीज ऑफ क्लासेस, आपके सीरीज ऑफ क्लासेस मीन्स देयर कुड बी 10 classes, 15 classes, even the full semester, there may be a same general ऑब्जेक्टिव्स। एक ही जनरल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है जो कि हर एक क्लास के लिए है, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हर एक क्लास के लिए सेम कभी नहीं होता है, कि हर एक क्लास का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अलग अलग होगा। इज दिस क्लियर? क्या ये डिस्कशन क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? जनरल ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म में अचीव होते हैं, जबकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म होते हैं, क्योंकि वो एक ही पर क्लास आपको वो अचीव करने होते हैं। ठीक है, सो आज का मेरा व्हाट इज माय स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास, आज की क्लास का हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फ्रेम द एजुकेशनल objectives in different disciplines. Can you say? आज जो मैंने क्लास Yes, लिया ma'am. है, टीचिंग किया है, Yes, ma'am. उसका मेन मेरा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फ्रेम द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन देयर ओन डिसिप्लिन। जो मैथमेटिक्स के हैं वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिख पाए, जो हिंदी सब्जेक्ट के हैं वो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड लिख पाए। ठीक है, सो मैंने स्पेसिफाई किया ना, परफॉर्मेंस लेवल मैंने स्पेसिफाई किया उसमें। इज आई एम क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. फाइन, एंड स्टिल सम मोर थिंग्स आर लेफ्ट, लाइक ये जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की हम अभी बात कर रहे हैं, ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे बेसिकली मैंने जो आपको एक्शन वर्ब्स की अभी अभी बात की है ना, देयर इज अ लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स, और उनका भी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना है एरिया ऑफ ए सर्कल, आपको एरिया ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ाना है क्लास में, छोटा सा एग्जाम्पल है, तो पहला एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव टीचर ने लिखा, स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है,
पहला क्या लिखा ऑब्जेक्टिव कि बच्चा जो है एरिया ऑफ सर्कल को लिख पाए, जो भी उसका फॉर्मूला है। सेकंड, स्टूडेंट विल बी एबल टू, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, एबल टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव टीचर ने बताया कि जो बच्चा है वो आइडेंटिफाई कर सके कौन कौन सी वैल्यूज हमको एरिया ऑफ सर्कल में सब्स्टिट्यूट करनी है। देन स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एरिया ऑफ सर्कल। तीसरा मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया कि स्टूडेंट जो है वो एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ठीक है, ये तीन ऑब्जेक्टिव्स बनाए। नाउ इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को आप देखिए, जो लेवल है, जो लर्निंग लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले एटलीस्ट उसको फॉर्मूला पता हो, फिर वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर पाए, और थर्ड वो जो प्रॉब्लम्स सर्कल एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड है उनको वो सॉल्व कर पाए। सो धीरे धीरे लेवल ऑफ लर्निंग बढ़ रहा है बच्चे का। कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. Yes. हाँ, Yes, so ma'am. हाँ, so this is one hierarchy, इसको हम बोलते हैं hierarchy of learning। ठीक है, so ये hierarchy जो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी में एक्सप्लेन की गई है। किसने एक्सप्लेन की है? This hierarchy is explained by ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो है, इसके बारे में आज टाइम 2:30 हो गया है, इट इज 2:33, बट कल हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं लिंक करता है आपके आज के डिस्कशन से। नो डाउट एज ए टॉपिक ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में नहीं दिया है, बट क्योंकि आपके इसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करने की बात की गई है, तो आपको एजुकेशनल टेक्सोनोमी, ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट, हाउ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज रिलेटेड विद एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या आज का डिस्कशन आपको क्लियर है बेटा? हाँ Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ओके Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो मैं आपको आपसे आप सभी को बोलती हूँ, यू राइट कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, यू सेलेक्ट एनी टॉपिक। ठीक है, एंड मैं एक लिस्ट भी होगा, आई थिंक इट इज विद मी, आई हैव टू सर्च समवेयर, जो एजुकेशनल हमारे ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, उससे रिलेटेड एक्शन वर्ब्स हैं। तो एक्शन वर्ब्स की लिस्ट जो है मैं वो भी आपको शेयर करूंगी। आप वो वर्ड्स को चूज करके आप पहले टॉपिक डिफाइन कीजिए। यू जस्ट, मैंने एक टॉपिक आपको अभी तक बताया है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल का मैंने आपको बताया है ना। मैंने क्या बताया एरिया ऑफ सर्कल के लिए? स्टूडेंट विल बी एबल टू फर्स्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सेकंड बताया स्टूडेंट विल बी एबल टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज in the formula of area of circle. Third, student will be able to solve the problems related with area of circle. तो ये एक टॉपिक मैंने लिया था एरिया ऑफ सर्कल, जो एक टीचर क्लास में सोच के गया है कि आज मेरे को एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बच्चों को पढ़ाना है। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव करने के लिए क्लास में पढ़ाने के लिए गया। सो सिमिलरली यू सेलेक्ट एनी टॉपिक इन योर डिसिप्लिन। आप कोई चैप्टर ले सकते हैं, आप कोई टॉपिक ले सकते हैं, उसको उसमें से कोई भी एक चैप्टर में से एक छोटा सा पोर्शन ले लो। जैसे टीचर को आज क्या पढ़ाना है, तो टीचर इज क्लियर कि आज मेरे को ये 3 चीजें कवर करनी है, ये 4 चीजें कवर करनी है। कभी कभी एक ही टॉपिक, एक ही एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव काफी बड़ा होता है, ये एक पूरी क्लास उसको हमको डिवोट करनी पड़ती है। समटाइम्स वी मे अचीव मोर देन 2-3 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ क्लास। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए फ्रेम करने के लिए, क्योंकि जब आप फ्रेम करके लेके आएंगे और आप बोलेंगे तो मुझे थोड़ी मदद मिलेगी ये समझने में कि आपको किस हद तक समझ में आया। ठीक है बेटा, सो थोड़ा एक छोटा छोटा असाइनमेंट दूंगी मैं, और फिर जो आपका इवैल्यूएशन के लिए असाइनमेंट होगा वो बड़ा होगा, जिससे कि आपको मदद मिलेगी कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से लिखना है। आपकी मिस्टेक्स हमको पता लगेंगी, एंड वी कैन डिस्कस एट दिस प्लेटफॉर्म। So write 3 educational objectives
ऑन एनी टॉपिक, कोई भी एक छोटा सा टॉपिक ले लो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड और उसके 3 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिख के लेके आइए, सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन दैट। आपके एक्शन वर्ब्स क्या हो सकते हैं उसका लिस्ट मैं आपको डाल दूंगी, सो दैट यू कैन हैव अ ग्लांस के एक्शन वर्ब्स कैसे हो सकते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I'm closing today's class. So I hope you understood about framing of educational objectives. Thank you, dear. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Now you can leave this meeting. आप लोग इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं। Thank you, ma'am.